my students, once again you all are welcome to your English class. Now students, as you all know, I have started from a very basic level. तो जिन लोगों के टॉपिक्स पहले हो चुके हैं स्कूल में, they can have a revision because last whole year you were at home just taking the online classes. तो उस चीज का रिवीजन कर सकते हैं आप. Again, along with that, जिन लोगों को ये सारे टॉपिक स्कूल में नहीं कराए गए, उनका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही I have started from the basic level so that you can understand from the root, from the zero level. Okay, I have started the sentences topic yesterday in which I gave you the introduction of 4 kinds of sentences, that is declarative sentences, imperative sentences, interrogative sentences and exclamatory sentences. And I have given you the information about the 3 basic punctuation marks which are used to end a sentence. That is a period which you all know by the name full stop. उसके साथ क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ये 3 पंक्चुएशन मार्क्स हमने कल डिस्कस किए थे एंड आई गेव यू द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. तो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कैसे होते हैं, आई गेव यू द इंफॉर्मेशन. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेगमेंट ऑफ सेंटेंसेस इन विच I will teach you about interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences so that आपको basic knowledge आ जाए कि sentences frame कैसे होते हैं. Okay, तो on this note, I welcome you once again in your own English class. So let's begin today's topic of sentences. So students, in the topic sentences, yesterday we started with the kinds of sentences in which we have done declarative, imperative, interrogative and exclamatory sentences. Along with that, we have done the three punctuation marks used to end a sentence is period, उसके साथ exclamation mark and question mark. So these are the 3 punctuation marks used to end a sentence, जैसे कि full stop जिसको आप पीरियड के नाम से जानते हो, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से. तो yesterday I gave you the introduction of all this और उसके साथ साथ declarative sentences. Now let's check out the second type of sentence. So students, second type of sentences start करने से पहले see the picture. What the character is saying? Character is saying go, जाओ यहाँ से, go from here. या कैरेक्टर अगर बोल रहा है कम हियर, तो ऐसे अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, कम हियर, तो ये टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. सो बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस व्हिच आर रिक्वेस्ट, कमांड एंड ऑर्डर. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड regarding the imperative sentences is कि imperative sentences हमेशा और हमेशा verb से start होंगे. imperative sentences में subject नहीं होता है, ये याद रखना. For example, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ go there, that means an order या sit down. See, go there, come here. These both are the examples of imperative sentences. Check it out. Sentence start हो रहा है go से. Go verb है. तो whenever a sentence start with a verb, they are imperative sentences. See, an imperative sentence gives a command or makes a request. या तो कोई command दे रहे हैं, command means order, या request कर रहे हैं. अब अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ come here, it can be request, it can be an order. और request को और ज्यादा request दिखाने के लिए आप ऐसा भी बोल सकते हो, please come here, तो वो request हो जाएगा. Okay? It usually ends with a period. That means जब भी imperative sentence end होगा, वो full stop से ही end होगा, याद रखना. But can under circumstances end with an exclamation point. तो कभी कभी imperative sentences exclamatory mark से भी end होता है. See this.
एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है यहाँ पर। तो मोस्टली imperative sentences end with a full stop, but sometimes imperative sentences to have a deep impact on the minds of readers, it ends with an exclamatory sentence, exclamatory mark. Okay, check out next. Now examples of exclamatory mark. Please sit down. Now see, उससे पहले ये पिक्चर देखिए, what this picture is saying, don't touch, हाथ नहीं लगाना। तो अगर मैंने यहाँ पर ये पिक्चर में ये लिखा है डोंट टच, तो क्या ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। अब आप बोलोगे मैडम आपने तो बोला था कि अगर हमने लिखा है कम हियर, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, पर यहां तो सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे हो गया? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा, बिकॉज ये नेगेटिव में इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव में इंपेरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है जो ये वर्ब से पहले लगे हैं। क्लियर? अब जैसे ये सेंटेंस है कम हियर, इसको मुझे नेगेटिव बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे? डोंट come here. तो again this is also an imperative sentence, but imperative sentence negative में। okay? तो जब भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है और वो एक ऑर्डर या रिक्वेस्ट या कमांड होता है, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट होगा लाइक दिस, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, हमें उसमें नॉट ऐड करना है। सी, सेंटेंस को नेगेटिव हमेशा नॉट, नो, नेवर और नेगेटिव वर्ड्स डाल के नेगेटिव बनाया जाता है। याद रखना, किसी भी सेंटेंस में नॉट अकेला नहीं आता। नॉट बहुत डरपोक है। नॉट को हमेशा और हमेशा अपने सामने एक हेल्पिंग वर्ब एज अ शील्ड, एज अ बॉडीगार्ड चाहिए। तो प्रेजेंट टेंस में नॉट से पहले बॉडीगार्ड आते हैं डू या डस। पास्ट टेंस में नॉट से पहले बॉडीगार्ड आते हैं डिड। फ्यूचर टेंस में नॉट से पहले बॉडीगार्ड आते हैं विल या शॉल। प्रेजेंट परफेक्ट में नॉट से पहले बॉडीगार्ड आते हैं हैज या हैव। पास्ट परफेक्ट में नॉट से पहले बॉडीगार्ड आते हैं हैड। तो हर एक टेंस में जब भी आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट यूज कर रहे हो, नॉट कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं जाएगा। उससे पहले उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज होगा। जैसे कि यहाँ पर डोंट है, अब डोंट को अगर आप ब्रेक करोगे तो डू नॉट आएगा, ये आपको पता है। और मैंने अभी बताया कि नॉट सेंटेंस में अकेला नहीं आता, उससे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब एज अ बॉडीगार्ड आता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ प्लीज सिट डाउन। इन सेंटेंस को फिर से देखते हैं। सी, प्लीज सिट डाउन। अब यहाँ पे प्लीज रिक्वेस्ट के लिए लगा है, दिस इज अ रिक्वेस्ट वर्ब। सिट क्या है? सिट है वर्ब एंड दैट ऑल्सो V1। तो सेंटेंस बिगिन किससे हो रहा है? वर्ब से। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये रिक्वेस्ट है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमने प्लीज लिखा हुआ है। क्लियर? स्टॉप बॉदरिंग मी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉदरिंग? बॉदरिंग करना, परेशान करना, इरिटेट करना, एनॉय करना। ठीक है, आप किसी को परेशान कर रहे हो, अपने छोटे भाई को परेशान कर रहे हो, अपनी छोटी बहन को परेशान कर रहे हो, वो क्या बोलते हैं? प्लीज मुझे परेशान मत करो। तो दैट इज स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो। Clear? So these are the examples of imperative sentences. Beta, you must know how to transform an declarative sentence to imperative, imperative to interrogative, interrogative to negative. और ये सब मैं आपको with the rule समझाऊंगी, लेकिन
उन रूल से पहले आपको ये काइंड्स अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप उन सेंटेंसेस को चेंज कर पाओगे, ट्रांसफॉर्म कर पाओगे इन द एग्जामिनेशन एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? नाउ अब इंपेरेटिव सेंटेंस को घर भेजते हैं। अब व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, देखो जरा क्या कर रहा है वो कुछ ढूंढ रहा है, कुछ एनालाइज कर रहा है, कुछ रिसर्च कर रहा है। किस चीज पे रिसर्च कर रहा है? इस क्वेश्चन मार्क पे, कि अरे भाई ये क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है? तो वो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो दैट मीन्स नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट सम क्वेश्चन दैट इज इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इसको क्वेश्चन पे रिसर्च करने देते हैं और क्वेश्चन का क्वेश्चन ढूंढने देते हैं, तब तक हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। सी ना क्वेश्चन मार्क, सी दिस। अब ये क्वेश्चन मार्क अपने आप में ही ढूंढ रहा है, आंखें घुमा घुमा के कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। देख रहे हो आप, बेचारा ढूंढ रहा है, यार मेरी जगह कहाँ है सेंटेंस में, मैं कौन हूं। तो क्वेश्चन मार्क इज अ टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क which is used to end a sentence. First thing, अब ये क्वेश्चन मार्क किस टाइप ऑफ सेंटेंस में लगते हैं? तो ये क्वेश्चन मार्क लगते हैं द सेंटेंसेस which are questions। जब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, उस लाइन के बाद लगते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन बनाता कौन है, कैसे पता चलता है कि ये क्वेश्चन है? तो उसके लिए टू कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड। सबसे पहले एंड में क्वेश्चन मार्क चाहिए, क्लियर? और उससे पहले बिगिनिंग में चाहिए क्वेश्चन वर्ड। जब तक क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा बिगिनिंग में, एंडिंग में यू कैन नॉट अप्लाई क्वेश्चन मार्क। इसलिए तो वो ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, कौन से सेंटेंस में जाऊं। तो जब तक आप किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप उस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। अब बात आती है क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH फैमिली के वर्ड। WH फैमिली के वर्ड से आप क्वेश्चन बिगिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। और जब आप इन क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क से, ये डेफिनेट बात है। तो याद रखना, क्वेश्चन बनाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, क्वेश्चन वर्ड इन द बिगिनिंग और क्वेश्चन मार्क इन द एंडिंग। तो क्या सिर्फ WH वर्ड लगाने से हम क्वेश्चन बना सकते हैं? नहीं नहीं, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर, जिसमें एक होते हैं वर्बल क्वेश्चंस, सेकंड होते हैं WH क्वेश्चंस और थर्ड होते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा, पर बिगिनिंग का पार्ट थोड़ा डिफर करेगा। कैसे डिफर करेगा? जो वर्बल क्वेश्चंस होंगे, वर्बल क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इज, आर, हैज, हैव, विल, डू, डज, डिड। तो ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनको यूज कर कर भी आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाकर उसको क्वेश्चन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? चेक आउट समथिंग मोर अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, तो वो एक क्वेश्चन पूछता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफन बिगिन विथ, किससे बिगिन होता है वो? WH वर्ड से, जो मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, और इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। अब वो एंड किससे होता है? क्वेश्चन मार्क से। और इसके साथ साथ जैसे ये डू लिखा है, वो डू से स्टार्ट होता है, डज से स्टार्ट होता है, डिड से स्टार्ट होता है, आर से स्टार्ट होता है, इस से स्टार्ट होता है, हैज से स्टार्ट होता है, हैव से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं हैव यू गॉट योर न्यू मोबाइल, क्या तुमको अपना न्यू मोबाइल मिल गया है? तो आप यस या नो में आंसर दे सकते हो। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आर यू पेइंग अटेंशन,
क्या आप ध्यान दे रहे हो? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओके, अगर मैं बोलूं डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? डू से। एंड किससे हुआ? क्वेश्चन मार्क से। तो व्हेनेवर अ क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड, इट मस्ट हैव two basic components. First is in the beginning question word, which can be these WH words or which can be these helping verbs as a beginning part, और end में हमेशा और हमेशा question mark. Clear? Now check out some examples of questions. तो इस question mark को यहीं ढूंढने देते हैं अपना क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर, तब तक हम देखते हैं क्वेश्चंस के एग्जांपल्स। नाउ एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो क्वेश्चंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं और एग्जांपल देखिए। व्हाई डज द सन शाइन, सूरज क्यों चमकता है। अब व्हाई मीन्स क्यों। जब आप कुछ रीजन पूछ रहे हैं तो आप बोलेंगे व्हाई। क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा और हमेशा क्वेश्चन वर्ड चाहिए और उसके बाद हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, याद रखना। क्लियर? मोस्टली सेंटेंस ऐसा ही बनता है। अब एक क्वेश्चन बनाना क्यों आना चाहिए बेटा? क्योंकि स्टेट बोर्ड में आपको क्वेश्चन आएगा ग्रामर सेगमेंट में, फ्रेम अ WH क्वेश्चन। आपको एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा एक क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन बनाना तो आना चाहिए, उससे पहले ये पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो ये आपको स्टेट बोर्ड में काम आएगा कि हाउ टू चेंज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और स्पेशली बोला जाएगा फ्रेम अ WH क्वेश्चन। याद रखना, ये जरूर आता है स्टेट बोर्ड में। तो व्हाई डज द सन शाइन, अब यहां लगा है डज। मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी कि व्हेनेवर किसी भी सेंटेंस में डू, डज या डिड हो, इनके बाद सिर्फ और सिर्फ V1 लगता है। सी दिस इज V1। तो डू हो, डज हो, डिड हो, इनके बाद हमेशा और हमेशा अगर वर्ब लगेगा तो वो V1 लगेगा। ओके, नाउ हुज का मतलब क्या होता है? हुज का मतलब होता है किसका। नाउ हुज के बाद आपको सब्जेक्ट देना पड़ता है क्योंकि वो सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा है। हुज डॉग इज दैट, ये किसका डॉगी है। ओके, तो हुज मतलब किसका। हुज बुक इज दिस, हुज और विच, इनके बाद आपको सब्जेक्ट देना पड़ता है बिकॉज आप सब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं। विच बुक यू वॉन्ट, विच मतलब कौन सी, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, तो विच बुक you want. Clear? Now, when are you going to submit your assignment? Yes, this is for you all. अपना असाइनमेंट कब सबमिट कर रहे हैं आप लोग? जल्दी से जल्दी। और असाइनमेंट पे मुझे एक होमवर्क याद आया है अभी कि मैंने अभी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस सिखाए हैं, मैं अभी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखा रही हूँ। तो व्हाट इज योर असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक? यू हैव टू फ्रेम 10 sentences as an imperative sentence and 10 sentences as an interrogative sentences as the assignment of sentences topic. Clear? अब ये देखिए, do you know what the weather will be tomorrow? क्या तुमको पता है कल मौसम कैसा होगा? See, ये तीनों WH फैमिली के क्वेश्चन हैं। This is verbal question. WH फैमिली के क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। सी वाई के बाद, व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा। ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये चीज याद रखना है तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ये क्वेश्चन। क्लियर? लेकिन जब भी हम हुज या विच की बात कर रहे हैं, इनके बाद
सब्जेक्ट आता है, ये याद रखना. सो ऑन दीज 2 शॉर्ट ट्रिक्स यू हैव टू फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस rather than this. इसके अलावा तो 10 क्वेश्चंस आप फ्रेम करेंगे WH वर्ड्स को लेकर और 10 क्वेश्चंस आप फ्रेम करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर, वर्बल क्वेश्चंस. अब वर्बल क्वेश्चन में चाहे आप डू से स्टार्ट कर रहे हैं, आप डस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब भी आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब. ओके, जैसे डू यू हैव अ कार, Are you studying? Is this your mobile? Is this your book? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप फ्रेम करके you will send it to me on my WhatsApp as your assignment on the topic imperative and interrogative sentences. Okay, so all this for today. I hope आपको imperative sentences और interrogative sentences बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. Tomorrow I'll continue with the exclamatory sentences and some practice over the transformation of sentences. So just stay tuned for more videos. Till then, thank you. Have a nice day.